அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அலா ரசூலில்லா வஅலா ஆலிஹி வஸ்ஹாபி அஜ்மாயின் அம்மாபாத். அவுஸ் பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். ரப்பி ஷ்ரஹ் லி சத்ரி வயஸ்ஸிர் லி அம்ரி வஹ்லுல் உக்ததம் மின் லிசானி யஃப்கஹு கௌலி. சுப்ஹானக லா இல்ம லனா இல்லா மா அல்லம்தனா இன்னக அன்தல் அலீமுல் ஹக்கீம். ரப்பி ஸித்னி இல்மன் நாஃபியா ரப்பி ஹப்லி ஹுக்மா. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனும் ஆகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தால் என் உரையை ஆரம்பிக்கின்றேன். அனைவருக்கும் ஈது பிறநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதோடு இதயங்கணிந்த அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுடைய சலாமத்தும் ரஹமத்தும் பரக்கத்தும் உங்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக என்ற பிரார்த்தனையோடு, அன்புக்குரியவர்களே, ஈது பெருநாள், பக்ரீத் பெருநாள் என்று நாம் எல்லோரும் அறியப்படக்கூடிய இந்த திருநாள் தியாகத் திருநாளாக கருதப்படுகின்றது. முஸ்லிம்கள் கொண்டாடக்கூடிய இரு பெரும் ஈது பெருநாட்கள். இந்த பண்டிகைகளுக்கு தனி பெரும் பேருண்டு. ஒரு பெருநாள் 30 நாட்கள் நோன்பு வைத்து விட்ட பிறகு ஈகை திருநாளாக ஈதுல் ஃபித்ர் என்று நாம் அறியப்படுகின்றோம். அதே போல பக்ரீத் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பெருநாளை ஈதுல் அத்ஹா என்று சொல்கின்றோம். அத்ஹா என்ற அந்த வார்த்தைக்கு இறைவனுக்காக என்று தியாகம் செய்யக்கூடிய திருநாளாக என்று கருதப்படுகின்றது. இதனுடைய சரித்திரத்தை சற்று பின்னோக்கி பார்த்தோம் என்றால் ஆச்சரியப்படக்கூடிய சில விஷயங்கள் நம் கண்முன்னே வருகின்றது. ஒரு பெண்மணி குழந்தையை பெற்றெடுத்து கை குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் இறைவனுடைய கட்டளை என்று ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய கணவனார் அவரை தனியாக ஒரு பாலைவனத்தில் விட்டு செல்லும் பொழுது யாருக்கும் பயப்படாமல், எதற்கும் அச்சப்படாமல், இது இறைவனுடைய கட்டளை என்றால் இறைவன் எனக்கு போதுமானவன், அவன் என்னை பாதுகாப்பான் என்கிற அந்த மன தைரியத்தோடு, மன வலிமையோடு அவர்கள் தனியாக அந்த தியாகத்தை செய்ததை நினைத்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அதே போல அன்பு மனைவி தள்ளாடிய வயதில் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரே வாரிசு என்று அந்த குழந்தையை அந்த கணவன் எப்படி விட்டு சென்றிருப்பார் என்று எண்ணி பார்க்கும் பொழுது, ஒரு கணவனாக, ஒரு தந்தையாக அவர் இறைவனுக்காக என்று செய்த தியாகத்தை எண்ணி பார்க்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அதே போல சரித்திரம் தொடர்கின்றது. அந்த சரித்திரத்துடைய தொடர்ச்சியாக அந்த பெற்றெடுத்த குழந்தை வளர்ந்து கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியான வயதில், வாலிப வயதில் இருக்கும் பொழுது தந்தைக்கு கட்டளை வருகின்றது, பெற்றெடுத்த அந்த ஒரே வாரிசை, அந்த குழந்தையை இறைவனுக்காக நீங்கள் பலியிட வேண்டும் என்ற அந்த கட்டளையை அவர் ஏற்று ஒரு கடுகளவும் எண்ணாமல், சிந்திக்காமல், மனம் பதபதக்காமல், இறைவனிடம் மன்றாடாமல், சமியானா அத்தானா என்ற அந்த வார்த்தைகளுக்கு இணங்க, கேட்டேன் அடிபணிந்தேன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளுக்கு இணங்க வாலிப வயதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இளம் மகனை அழைத்து கொண்டு இறைவனுக்காக என்று பலியிட செல்லக்கூடிய அந்த சம்பவத்தை நினைத்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். எந்த அளவுக்கு மன வலிமையோடு, மன தைரியத்தோடு, தியாக மனப்பான்மையோடு இறைவன் இந்த உலகத்தில் நம்மை அனுப்பினான், அவனுடைய கட்டளைக்கு இணங்க தான் நாம் வாழ வேண்டும், அவனுக்கே நம் சொந்தமானவர்கள் என்ற அந்த மனப்பக்குவத்தோடு தந்தையும் வாலிப வயதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மகனும் அதுக்கு ஒத்துழைப்பாக இருந்த தாயும் என்று இந்த மூவரும் சேர்ந்து செய்த தியாகம்தான் இன்றைக்கு நாம் நினைவு கூறக்கூடிய திருநாளாக இருக்கின்றது. நான் இதையெல்லாம் சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய கண்ணெதிரே நிச்சயமாக நபிகளார்களின்றெல்லாம் அனைத்து தூதர்களின் தந்தை என்று அறியப்படக்கூடிய நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களையும், அவருடைய அருமை மனைவியார் அன்னை ஹாஜிரா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களையும், அவர்கள் ஈன்றெடுத்த தவ குழந்தை நபி இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களையும் நீங்கள் நினைத்து பார்ப்பீர்கள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. எவ்வளோ பெரிய சரித்திரம்! இன்றைக்கு உலகெல்லாம் எங்கெல்லாம் முஸ்லிம்கள் வாழ்கின்றார்களோ, இந்த ஈது பெருநாள் அன்று இறைவனுக்காக என்று அந்த சம்பவத்தை நினைவு கூறக்கூடியவர்களாக, எப்படி அந்த தந்தையார் தன்னுடைய மகனை பலி கொடுப்பதற்காக என்று சென்ற பொழுது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த பலி கொடுக்கக்கூடிய கடைசி தருணத்தில், உங்களுடைய எண்ணமே எனக்கு போதுமானது, உங்களுடைய மகனை நீங்கள் பலி கொடுப்பதற்காக அல்ல, உங்களுடைய சத்தியத்தை, உங்களுடைய நம்பிக்கையை என் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையினுடைய ஒரு பரீட்சையாகத்தான் இதை நான் செய்தேன் என்று அந்த மகனை அவர்கள் அங்கிருந்து நவற்றிவிட்டு
அல்லாஹ்வுடைய மலக்குமார்கள் இறைவனுடைய கட்டளையை ஏற்று அங்கே ஒரு ஆட்டுக்கிடாயை படுக்க வைத்து அந்த ஆடு பலி கொடுக்கப்பட்டது என்கிற அந்த சம்பவத்தை நினைவு கூறக்கூடியவர்களாக இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் இந்த திருநாளை ஒரு ஒட்டகத்தையோ அல்லது ஒரு மாட்டையோ அல்லது ஒரு ஆட்டையோ என்று இறைவனுக்காக என்று பலி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த மாமிசமோ அந்த இரத்தமோ இறைவனை சென்று அடைவதில்லை. ஆனால் அந்த எண்ணம் தான் இறைவனை சென்று அடைகின்றது என்று திருமறை திருக்குரான் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது. இறைவனுக்காக என்று தியாகம் செய்யக்கூடிய அந்த ஆடு அல்லது மாடு அல்லது ஒட்டகம் நாம் மட்டும் புசிப்பதற்காக அல்ல, நாம் மட்டும் உண்பதற்காக அல்ல. யாரெல்லாம் பசியோடும் பட்டினியோடும் வறுமையில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு பகுதி, நம்முடைய சொந்த பந்தங்கள் உறவுக்காரர்கள் என்று அவர்களுக்கு ஒரு பகுதி, நாமும் அவர்களோடு சேர்ந்து உண்ணுவதற்காக என்று ஒரு பகுதி என்று மூன்றாக பிரித்து அனைவரோடும் சேர்ந்து கொண்டாடக்கூடிய திருநாள் தான் இந்த பக்ரீத் திருநாள். அன்புக்குரியவர்களே, இதனுடைய பின்னணி வெறும் இறைவனுக்காக என்று தியாகம் செய்வதோடு மட்டுமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி அமைத்து கொள்ள வேண்டும், குறிப்பாக ஒரு குடும்பமாக எப்படி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய திருநாளாக இருக்கின்றது. ரமலானுடைய 30 நாட்கள் ஒரு தனி மனிதனாக ஒரு மனிதன் எப்படி தன்னை புனிதனாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்று நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றதோ, அதே போல் பக்ரீத் பெருநாள் என்ற ஈதுல் அதா பெருநாள் ஒரு குடும்பமாக நாம் எப்படி வாழ வேண்டும், ஒரு சமுதாயமாக நாம் எப்படி வாழ வேண்டும், மற்றவர்களோடு கூட்டாக நாம் எப்படி சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சையாகவும் ஒரு பயிற்சியாகவும் இருக்கின்றது. அதனால தான் இன்றைய திருநாளை தியாக திருநாள் என்று சொல்கின்றோம். தியாகம் என்றால் என்ன? ஒரு குடும்பத்தில் எல்லோரும் சேர்ந்து இருப்பதும் தியாகம்தான். ஏன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லோரும் நான் எனக்கு என்று தனியாக சுயநலத்துக்காக என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நாம் தனியாக வாழ படைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல, அனைவரோடும் சேர்ந்து கூட்டாக வாழ படைக்கப்பட்டவர்கள். படைத்த இறைவன் நம்மை தனியாக படைக்கவில்லை, கூட்டாக மனித குலத்தோடு சேர்ந்து வாழ்வதற்காகத்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றான். இந்த வாழ்க்கை என்பது மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து மற்றவர்களோடு சேர்ந்து நம்முடைய தனிப்பட்ட சுயநலத்தை எல்லாம் தியாகம் செய்து இந்த சமுதாயமாக ஒரு நாடாக ஒரு உலகமாக என்ற மனித குலம் சேர்ந்து வாழ்வதற்காக தான் இறைவன் நம்மை படைத்திருக்கின்றான் என்று உணர்த்தக்கூடிய திருநாள் தான் இந்த தியாக திருநாள். ஆக இன்றைக்கு வெறும் அந்த குர்பானி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாமிசத்தை உண்ணக்கூடிய நாளாக மட்டும் அல்லாமல் தியாகமாக வெறும் ஒரு ஆடையோ அல்லது ஒரு மாடு ஒட்டகம் மட்டும் அல்ல, நம்முடைய சுயநலத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும், நம்முடைய பெருமையை தியாகம் செய்ய வேண்டும், நம் மற்றவர்களை பார்த்து பொறாமைப்படுவதை தியாகம் செய்ய வேண்டும். ஈகோ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை இன்றைக்கி எல்லாராலும் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று. இன்றைக்கு ஈகோ என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றார்கள், இட் எண்ட்ஸ் ஈகோ, when ego comes everything goes, when ego goes everything comes என்று சொல்லிக் கொடுக்கின்றார்கள். அதாவது சுயநலமாக தனக்கு என்று எண்ணும் பொழுது நம்மிடம் எல்லாம் இருந்தும் நாம் ஒன்றுமே இல்லாததாக தான் உணர்வோம். ஆனால் சுயநலத்தை நாம் தியாகம் செய்து விட்டோம் என்றால் எது இல்லாவிட்டாலும் மன நிம்மதியோடும் மன சந்தோஷத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் வாழ்வது ஒரு இலகுவாக இருக்கும் என்று நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகின்றது. ஆக இந்த தியாக திருநாளில் இறைவனுக்காக என்று நாம் உணரக்கூடியவர்களாக, சேர்ந்து வாழக்கூடியவர்களாக, மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கக்கூடியவர்களாக, ஒற்றுமையாக இருப்பது தான் இந்த தியாக திருநாளை. அதை உணரக்கூடியவர்களாக நாம் அனைவரும் இருந்து ஒரு அருமையான துவாவை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றார்கள். தக்கபல்லல்லாஹு மின்னா ஓ மின்கும், அதாவது இறைவன் உங்களிடமிருந்தும் என்னிடமிருந்தும் இதை ஏற்றுக்கொள்வானாக என்ற பிரார்த்தனை. எதை ஏற்றுக்கொள்வது? நம்முடைய நற்குணங்களை, நம்முடைய நல்ல பண்புகளை இறைவன் ஏற்றுக்கொள்வானாக என்ற பிரார்த்தனையோடு அனைவருக்கும் இந்த ஈது பெருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை கூறி அன்போடு விடைபெறுகிறேன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும். नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप तमाम को बकरीद मुबारक हो। ये महीना बहुत ही फ़जीलतों वाला और बरकतों वाला है। ये सानिहा हमको दो पैगंबरों के ताल्लुक़ से हमको याद दिलाता है कि ये दो पैगंबरों की आजमाइश हुई थी
जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में ये दिखाया गया था कि उनको उनके फ़र्जन को वो ज़िबह कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही अजीब मामला था। तो इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो तमाम पैगम्बरों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले हज़रत ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अक्सर मुफस्सिरीन हज़रात ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत बयान फरमाई है। तो इस मौके पर एक ऐसे जलीलुल क़द्र पैगंबर का इम्तिहान हो रहा था और उनको ख्वाब में ये दिखाया जा रहा था कि वो अपने फ़र्जंद को क़ुरबान कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अहम मौका था और जिसको क़ुरबान कर रहे हैं उनके फ़र्जंद वो ख़ुद भी होने वाले पैगंबर हैं। तो उन्होंने ये ऐसा मामला है, एक ऐसा वाक़या है कि इस पर अमल करने के बाद ये अमल अल्लाह ताला को ऐसा पसंदीदा हुआ कि इसको रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ताला ने इसको एक इबादत बना दी और सबसे मकबूल तरीन इबादत बना दी कि इस्लाम के जो 5 फ़राइज़ हैं उसमें से एक फ़र्ज़ हज है। और हज के सारे अरकान आप सब जानते हैं कि ये वही अमल है, उसी अरकान को इसमें दोहराया जाता है। और ये अमल अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा पसंद आया कि अल्लाह ताला ने इसको रहती दुनिया तक के लिए क़ायम फरमा दिया। इसमें जो हुआ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद से पूछते हैं कि इस तरह का ख्वाब मैंने देखा है, तो उन्होंने कहा कि आप इंशाअल्लाह कर गुज़रिए और मुझे आप साबिरीन में से पाएंगे। तो इसके बाद इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको लेके जाते हैं क़ुरबानी के लिए, ज़िबह करने के लिए। तो इस मौके पर शैतान की तरफ से वरगलाया जाता है, तो इसको कनकरियाँ मारी जाती हैं और ये सारे अरकान एक एक करके अब तक दोहराए जाते हैं। आज भी जो कनकरियाँ मारी जाती हैं तो वो उसी का अमल है, उसी को दोहराया जाता है। तो इसी तरह जब ज़िबह किया जा रहा है तो इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर उन्होंने कहा। तो इसके जवाब में वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये जो मुकालमा है 2 पैगंबरों का और एक फ़रिश्ते जली का, तो ये इतना ज़्यादा पसंद आया कि इसको रहती दुनिया तक के लिए एक वजीफ़ा बना दिया गया, एक ज़िक्र बना दिया गया। तो आज तक हम इसको दोहराते हैं। जब ईद आती है तो एक दिन पहले इसको शुरू करते हैं और ईद के दिन और फिर इसके बाद भी 4 दिनों तक इसको दोहराया जाता है। हर नमाज के बाद ये वजीफ़ा, ये मुकालमा अल्लाह ताला को इतना पसंदीदा करार पाया कि इसको रहती दुनिया तक इसको दोहराया जाएगा। तो ये अमल इसी तरह सही का अमल है। और जिस तरह से सफ़ा और मरवा के दरमियान में हज़रत हाजिरा ने दौड़ लगाई थी, तो ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, तो इसको भी हज के अरकान में इसको शामिल किया गया है। आज तक हम इसको दोहराते रहे हैं। ये सारे ही अमाल, ये सारी ही वाक़या जो है तारीख़ का सबसे अहम वाक़या है और इसी की याद में बकरीद मनाई जाती है। तो क़ुरबानी का माना है क़ुरबान क़ुर्ब से है। अरबी में क़ुर्ब यानी नज़दीकी, अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने का ये ज़रिया है। तो इससे हमको जो पैगाम मिलता है वो ये है कि इसमें मोहब्बत की बात है। तो अल्लाह ताला के क़रीब पहुँचने के लिए मोहब्बत इम्तिहान है। तो सबसे अल्लाह ताला ने क़ुरान में भी फरमाया कि अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अल्लाह से मोहब्बत शदीद तरीन मोहब्बत होनी चाहिए। वो आम जैसी मोहब्बत नहीं जो आम तौर पर होती है कि अपने आल औलाद से, बीवी से, बच्चों से, मालो दौलत से और हर दुनिया की चीज़ से ज़्यादा हमको अल्लाह से मोहब्बत हो। इसका नमूना वहाँ पे पेश किया गया और ये अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद आया और रहती दुनिया के लिए इसको नमूना करार दिया गया। तो इस वाक़े से हम ये पता चलता है कि सबसे अहम चीज़ अल्लाह की मोहब्बत है और ऐसी मोहब्बत जो शदीद तरीन मोहब्बत, तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा मोहब्बत वो अल्लाह को पसंद है। तो हमको
इससे यही बात समझ में आती है, इसके हमारे ईमान की पुख्तगी और इसमें हलावत पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम मोहब्बत अल्लाह से पैदा करें। क़ुर्ब से क़ुरबानी है, तो क़ुरबानी का हासिल यही है कि हम क़रीब से क़रीब होने की कोशिश करें। दूसरी अहम बात ये है कि मोहब्बत का मेयार ईसार और क़ुरबानी है। ये बात इससे तय हो गई कि ईसार और क़ुरबानी से मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत पैदा होती है। हम दुनिया में मोहब्बतें क़ायम करना चाहते हैं, मोहब्बतों का सबूत देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको क़ुरबानी देनी होगी, हमको जान व माल की क़ुरबानी देनी होगी। कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ लूज़ करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इस तरह दुनिया में हर जगह हर मामले में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ईसार और क़ुरबानी से काम लें। जब तक हम अपना कुछ खोने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ पाने की उम्मीद भी हमारे लिए बेकार है। तो ये दूसरा बहुत ही अहम मकसद जो इससे हमको हासिल होता है, मुल्क और मिल्लत के लिए हम क़ुरबानी दें, अपने आप के लिए क़ुरबानी दें, समाज के लिए क़ुरबानी दें, और एक अच्छे माशरे की तामीर के लिए, एक सालेह क़दरों की पायदारी के लिए क़ुरबानी ज़रूरी है। जब तक हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, अपनी अना को नहीं छोड़ेंगे, अपने मालो दौलत की क़ुरबानी नहीं देंगे, अपना कुछ छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी ज़ात से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम कुछ पा नहीं पाएंगे और समाज की तामीर के सिलसिले में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही अहम पैगाम हमको मिलता है बकरीद से कि हमको चाहिए कि हम ईसार व क़ुरबानी से काम लेना सीखें। तो इसी तरह ये बात भी ज़रूरी है कि जब हम कुरान में ये साफ़ बता दिया गया कि ये जो क़ुरबानी देते हैं जानवर, तो इसका ना तो गोश्त हम तक पहुंचता है और ना ही खून हम तक पहुंचता है, आपकी नीयत है और आपका तक़वा है जो हम तक पहुंचता है। तो ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया। तो इससे बात साबित हो गई कि फ़ुक़हा हज़रात बताते हैं कि क़ुरबानी के जानवर का जो भी गोश्त है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक अपने औलाद के लिए, और एक हिस्सा अक़रबा के लिए, और एक हिस्सा गुरबा के लिए, गरीबों के लिए। तो इससे क्या मालूम होता है कि हर चीज़ में गुरबा का हिस्सा भी होना चाहिए, अपने अक़रबा का यानी रिश्तेदारों का, क़रीब वालों का भी हिस्सा होना चाहिए, और अपने आप का भी हिस्सा होना चाहिए। तो इस तरह से एक हिसाब से 30% बनता है। तो हम अब अपने आप को हमको टटोल कर देखना पड़ेगा कि हम कहाँ तक इससे इंसाफ कर रहे हैं। तो हम तो 100% को अपने ही ज़ात में घेरे हुए हैं। हम ना तो 30% समाज का निकालते हैं और ना हम अपना 30% अपने रिलेटिव्स का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का निकालते हैं। तो किसी भी मामले में ज़िंदगी के हर शोबे में, हर जगह हमको ये जो प्रोपोर्शन है इसको क़ायम रखना चाहिए, और हमको अपनी ज़ात से बाहर आकर, ख़ुदगर्ज़ी से निकल कर और समाज के मसाइल को और माशरे की तामीर को, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने मोहल्ले के बारे में, अपने मिलने जुलने वालों के बारे में हमको सोचना चाहिए। जब तक हम ख़ुदगर्ज़ी के खोल से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे लिए मुश्किल है। और ये पैगाम हमको मिलता है बकरीद से कि हम अपनी ज़ात से निकलने की कोशिश करें, ईसार और क़ुरबानी से काम लेने की कोशिश करें, अपना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना हम शुरू करें, गरीबों के बारे में सोचें, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचें। ये सारी बातें हमको इस मौके से हमको मालूम होती हैं। तो मैं इस मौके पर आप लोगों से इसी बात की उम्मीद करता हूँ कि हमारे माशरे में, हमारी कौम के अंदर इस तरह के जज्बे पैदा हों, और हम अल्लाह करे कि हम मुल्क व मिल्लत के बारे में और एक आम बेदारी हमारे अंदर पैदा हो जाए। यही इसका पैगाम है और यही मेरी आप लोगों से ख्वाहिश है। और आखिर में आप लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ।
आप तमाम हजरात की खिदमत में ईद की मुबारक बात पेश करते हुए हम्द के साथ में इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। समात की मैं गुजारिश करता हूँ। ईद का रोज है, रहमत की घटा छाई है, दिल के वीराने में खुशियों की बहार आई है। ऐ मेरे अल्लाह तेरा शुक्र करते हैं अदा, ऐ मेरे अल्लाह तेरा शुक्र करते हैं अदा, फिर हमें मौका अता फरमा दिया बकरीद का। रहम कर तू रहम कर अपने ना आईने, करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हम को भूल जा। खारी हैं बदकारी हैं और डूबे हुए जिल्लत में हैं, खारी हैं बदकारी हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, जो भी हैं फिर भी तेरे महबूब की उम्मत में हैं, जो भी हैं फिर भी तेरे महबूब की उम्मत में है। ना नमाज आती है हमको, ना वज़ू आता है, ना नमाज आती है हमको, ना वज़ू आता है, सजदा कर लेते हैं जब सामने तू आता। हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम क्या हैं, कोई काम जो हमसे होगा। हम क्या हैं, कोई काम जो हमसे होगा, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। तो इसलिए सब तेरा करम सुबहान अल्लाह, सब तेरा करम सुबहान अल्लाह, तेरी शान निराली है अल्लाह, तेरी शान निराली है अल्लाह, सब तेरा करम सुबहान अल्लाह, सब तेरा करम सुबहान अल्लाह, तेरी शान निराली है अल्लाह, सब तेरा करम मान अल्लाह दे शान निराली या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, सब तेरा करम सुबहान अल्लाह, सब तेरा करम सुबहान अल्लाह, तेरी शान निराली है अल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु
हो गाफिल दिल जिक्र से तेरे हो गाफिल तेरा ही मकान है हर एक दिल। तो जो चाहता हूँ दिल जिक्र से तेरे हो गाफिल तेरा ही मकान है हर एक दिल। एक तू ही फकत है बका बिल्ला एक तू ही फकत है बका बिल्ला तेरी शान निराली है अल्लाह तेरी शान निराली है अल्लाह तेरी शान निराली है अल्लाह सब तेरा करम सुभान अल्लाह सब तेरा करम सुभान अल्लाह तेरी शान निराली है अल्लाह। अल्लाहु 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 तू दूर नहीं है कुर्बे गुलू तू दूर नहीं है कुर्बे गुलू और मालिक कुन फयकुन है तू। तू दूर नहीं है कुर्बे गुलू और मालिक कुन फयकुन है तू। ये कौल है कौल रसूल अल्लाह ये कौल है कौल रसूल अल्लाह तेरी शान निराली है अल्लाह ये कौल है अल्लाह। एक नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहा हूँ, समझ फरमाइएगा। जिस घड़ी कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु जिस घड़ी कहते मोहम्मद कुल हुवल्लाहु अहद सुन के फरमाते अली क्या शान अल्लाहु समद। लम यलिद कहते हसन कहते वलम यूलद हुसैन। फातिमा
कहती वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। मकाम फर्श व फलक ही नहीं, मकाम फर्श व फलक ही नहीं, मकाम रसूल और हरी में अर्श की रिफात है ज़ेरे गामे रसूल। ज़हे बुलंदी एज़ाज़ो एहतराम रसूल और खुदा के बाद लिया जा रहा है नाम रसूल। और खुदा के बाद लिया जा रहा है नाम रसूल। अजी हकीकत आशिना इस बात को तस्लीम करते हैं, हकीकत आशिना इस बात को तस्लीम करते हैं। खुदा तख्लीक करता है, नबी तकसीम करते। हकीकत आशना इस बात को तस्लीम करते हैं, खुदा तख्लीक करता है, नबी तकसीम करते हैं। तो इसलिए नबियों की और वलियों की, नबियों की और वलियों की अज़मत कुछ और है, लेकिन मेरे नबी की हकीकत कुछ और है। तो कैसी हकीकत? अजी कलामे खुदा है। तो ये चाहता हूं, लेकिन मेरे नबी की हकीकत कुछ और है। कैसे? कलामे खुदा है। अजी कलामे खुदा है, कलामे मोहम्मद, कलामे खुदा है, कलामे मोहम्मद, कलामे खुदा है, कलामे मोहम्मद। आह कलामे खुदा है, कलामे मोहम्मद, कलामे खुदा है, कलामे मोहम्मद, कलामे खुदा है, कलामे मोहम्मद, कलामे खुदा है, कलामे मोहम्मद। खुदा खुद है गोया, खुदा खुद है गोया बनामे मोहम्मद, खुदा खुद है गोया बनामे मोहम्मद, खुदा खुद है गोया कलामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जताता हूँ शेर पर। खुदा की कसम है, खुदा जानता है, खुदा की कसम है, खुदा खुदा की कसम है, खुदा जानता है। क्या? खुदा की कसम है, खुदा जानता है। अरे खुदा से ही पूछो, खुदा से ही पूछो मकामे मोहम्मद, खुदा से ही पूछो मकामे मोहम्मद, खुदा से ही पूछो मकामे मोहम्मद, खुदा से ही पूछो मकामे मोहम्मद। खुदा की कसम है, खुदा जानता है, खुदा की कसम है, खुदा जानता है। खुदा की कसम है,
जानता है अजी खुदा से ही पूछो मकाम मोहम्मद, खुदा से ही पूछो मकाम मोहम्मद, खुदा से ही पूछो मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हाँ। ना दुनिया का गम है ना उक़बा का धड़का, ना दुनिया का गम है ना उक़बा का धड़का, ना दुनिया का गम है ना उक़बा का धड़का, बड़ा मुतमईन है गुलामे मोहम्मद, 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 बड़ा मुतमईन है गुलामे मोहम्मद। बड़ा मुतमईन है गुलाम मोहम्मद। न पूछो हमसे महशर में हमारा हश्र क्या होगा, न पूछो हमसे महशर में हमारा हश्र क्या होगा। खुदा होगा नबी होंगे खुदा होगा। न पूछो हमसे महशर में हमारा हश्र क्या होगा, खुदा होगा नबी होंगे खुदा होगा। ये उम्मत जिस तरफ होगी, बड़ा मुतमईन है गुलाम मोहम्मद। तो जो चाहता हूँ ये उम्मत जिस तरफ होगी, न पूछो हमसे महशर में हमारा हश्र क्या होगा, खुदा होगा नबी होंगे खुदा होगा। ये उम्मत जिस तरफ होगी मोहम्मद उस तरफ होंगे, ये उम्मत जिस तरफ होगी मोहम्मद उस तरफ होंगे, मोहम्मद जिस तरफ होंगे उसी जानिब खुदा होगा। ना दुनिया का गम है ना उक़बा का घटका, ना दुनिया का गम है ना उक़बा का घटका, ना दुनिया का गम है ना उक़बा का धड़का। जी बड़ा मुतमईन है गुलाम मोहम्मद, बड़ा मुतमईन है गुलाम मोहम्मद, बड़ा मुतमईन है गुलाम मोहम्मद, बड़ा मुतमईन है गुलाम मोहम्मद। वही चाहता हूँ, बनाता हूँ हर एक बिगड़ी इसी से, बनाता हूँ हर एक बिगड़ी इसी से, बनाता हूँ हर एक बिगड़ी इसी से, बनाता हूँ हर एक अजी बिगड़ी इसी से। अजब अजी अजब अजब इसमें आज़म है नाम मोहम्मद, अजब इसमें आज़म है नाम मोहम्मद, अजब इसमें आज़म है नाम मोहम्मद, अजब इसमें आज़म है नाम मोहम्मद। खुदा का तो इरफान आसान है लेकिन खुदा का तो इरफान आसान है लेकिन, खुदा का तो इरफान आसान है लेकिन समझना है मुश्किल मकाम मोहम्मद, समझना है मुश्किल मकाम मोहम्मद, समझना है मुश्किल मकाम मोहम्मद, समझना है मुश्किल मकाम मोहम्मद। हाँ साहब, गुलाम मोहम्मद हूँ, गुलाम मोहम्मद हूँ कहना
तो आसा, मुसलमान हूं ये कह लेना बहुत आसान होता है। मुसलमान हूं ये कह लेना बहुत आसान होता है। मुसलमान है वही जो दीन पर कुर्बान होता है। गुलामे मोहम्मद हूं कहना तो आसान, मगर बन तो जाओ गुलामे मोहम्मद, मगर बन तो जाओ गुलामे मोहम्मद, मगर बन तो जाओ गुलामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी हो जो बराहीम का ईमान पैदा, आज भी हो जो बराहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हर नेक अमल हुस्ने इबादत से कम नहीं, जो रब का हो गया है उसे कोई गम नहीं, जो रब का हो गया है उसे कोई गम नहीं। साबित जो हक पे साहिबे ईमान रहेगा, उस मुत्तकी से दूरी ही शैतान रहे। जियारत हो काबे की, जियारत हो काबे की सबको मुयस्सर, जियारत हो काबे की सबको मुयस्सर। अल्लाहुम्मा लब्बैक हो सबके लब पर, अल्लाहुम्मा लब्बैक हो सबके लब पर, अल्लाहुम्मा लब्बैक हो सबके लब पर, अल्लाहुम्मा लब्बैक हो सबके लब पर। जियारत हो काबे की जियारत हो काबे की सबको मुयस्सर। अल्लाहुम्मा लब्बैक हो सबके लब पर, अल्लाहुम्मा लब्बैक हो सबके लब पर, अल्लाहुम्मा लब्बैक हो सबके लब पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुआ जब ख्वाब में, हुआ जब ख्वाब में एक बाप को ये हुक्म रब्बानी, हमें मतलूब है कर दीजिए बेटे की कुर्बानी।
ये सुनकर हजरत इब्राहिम का जज्बा मचल उठा। पिसर को हुक्म पर अल्लाह के कुर्बान करने का। ये सच्चा ख्वाब इस्माइल पर जब हो गया जाहिर के बेटे ने कहा सर अपना, के बेटे ने सर अपना, के बेटे ने कहा सर अपना झुका कर बाप से आखिर क्या कहा कि कहा बेटे ने सर अपना झुका कर, कहा बेटे ने सर अपना झुका कर बाप से आखिर क्या कहा, खुदा के हुक्म की तामीर, खुदा के हुक्म की तामील में ताखीर मत करना। खुदा के हुक्म की तामील में ताखीर मत करना। हकीकत में मेरा जीना है, हकीकत में मेरा जीना है, रब के नाम पर मरना। अल्लाहुम्मा लब्बैक, 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो फिर दोहरा रहा हूं मैं शेर को इसमें। खुदा के हुक्म की तामील में ताखीर मत करना। हकीकत में मेरा जीना है, रब के नाम पर मरना। मैं साबिर हूं, मैं साबिर हूं, मैं साबिर हूं, मुझे तुम साबिरों की सफ में पाओगे। गले पर हुक्म से अल्लाह के खंजर चलाओगे। कहा बेटे ने पट्टी बांध लीजिए अपनी आंखों पर। कहा बेटे ने पट्टी बांध लीजिए अपनी आंखों पर। कहीं शैतान जज्बा कम न कर दे मुझको दिखला कर। कहीं शैतान जज्बा कम न कर दे मुझको दिखला कर। कि इब्राहिम को ये बात बेटे की पसंद आई। कि इब्राहिम को ये बात बेटे की पसंद आई। हुई तैयारी इस्माइल को कुर्बान करने की। खुदा की शान रहमत जोश में खुदा की शान रहमत जोश में आई हुआ ऐसा। खुदा की शान रहमत जोश में आई हुआ ऐसा। कि इस्माइल के बदले में था जन्नत का एक दुम्बा। कि इस्माइल के बदले में था जन्नत का एक दुम्बा। खलीलुल्लाह की ऐ मोमिनो जारी है ये सुन्नत। खलीलुल्लाह की ऐ मोमिनो जारी है ये सुन्नत। कसम अल्लाह की बाकी रहेगी हश्र तक शौकत। खलीलुल्लाह की ऐ मोमिनो जारी है ये सुन्नत। कसम अल्लाह की बाकी रहेगी हश्र तक शौकत। हर नेक अमल हुस्न इबादत से कम नहीं। हर नेक
अमल हुस्न इबादत से कम नहीं, हर नेक अमल हुस्न इबादत से कम नहीं, जो रब का हो गया है उसे कोई गम नहीं, जो रब का हो गया है उसे कोई गम नहीं, जो रब का हो गया है उसे कोई गम नहीं, जो रब का हो गया है उसे कोई गम नहीं। अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। हाँ साहब, आखिर में मैं और हमारी ये टीम, ये हमारी हमनवा नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम के इनेकाद पर दूरदर्शन पोदिगी चैनल के शुक्रगुजार हैं और ईद की मुबारकबाद हम पेश करते हैं। शुक्रिया।